السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ٹھیک ہے ماں، اور یوں بھی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم تندرست ہو جاؤ، باقی ساری باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، وریودن نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں دوہتر اشستر اور رانی کندھاری تنہا رہ گئے۔ تب دوہتر اشستر نے کندھاری سے پوچھا، کندھاری تم کندھار گئی تھی؟ ہاں مہاراج۔ کیا ہوا؟ کیا تم نے اپنے پتا جی سے اس کے بارے میں بات کی؟ دوہتر اشستر نے پوچھا۔ ہاں مہاراج گئی تھی، پر دھن راج مہاراج ہمیں نہیں مل سکے۔ اوہو، پھر کیا ہوا؟ پھر میں واپس وہاں آئی تو چمپا کلی مر چکی تھی سرتاج۔ رانی کندھاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور تم نے ایک بہت بڑا پاپ کیا ہے رانی کندھاری، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ وہ کیا؟ رانی کندھاری نے پوچھا۔ آخر چمپا کلی یہ سب کچھ کیوں چاہتی تھی؟ بس مہاراج، یہ ساری باتیں بھگوان ہی جانے۔ اگر وہ مجھے اپنے بارے میں بتا دیتی تو شاید میں اسے اس طرح نہ مرنے دیتی، رانی کندھاری نے کہا۔ دوہتر اشستر اس کی اس بات سے مطمئن نہ ہو سکا تھا، تاہم خاموش ہو گیا۔ یا نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، یا اس نے یہ خاموشی مسلطن اختیار کر لی اور اس بات کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ چمپا کلی کو مرے ہوئے تیسرا دن تھا جب وریودن ماں کے پاس پہنچ گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماتا جی، میں سخت پریشان ہوں۔ کیوں وریودن؟ رانی کندھاری نے بے چینی سے پوچھا۔ ویسے وہ وریودن کے آنے کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ وہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم کیوں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں وریودن، تو چنتا نہ کر، بس چمپا کلی کی موت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اوہو، تو وہ لڑکی چمپا کلی تھی؟ ہاں وریودن۔ کون تھی وہ ماتا جی، کون تھی؟ کندھاری ایک لمحے کے لیے چپ سی رہ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کا چپ رہنا وریودن کو کھٹک بھی سکتا ہے، چنانچہ وہ فوراً بولی۔ نہ جانے کون تھی بد نصیب، کہاں سے آئی تھی، ہماری سہایتا تو اس نے کی، مگر باقی اس کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو سکا، رانی کندھاری نے کہا۔ مگر تم نے اسے اس عمارت میں کیوں بھیجا تھا ماتا جی؟ وہ وہاں کیوں گئی تھی اور پھر وہ مر کیسے گئی؟ بھگوان جانے، یہ ساری باتیں بھگوان ہی جانے، خود میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں تو اسے دیکھنے گئی تھی، پر وہ وہاں مری پڑی تھی۔ تعجب کی بات ہے، پر تھی بڑی سندر ماتا جی۔ بھگوان کی سوگند، میرا من اس کے لیے بڑا دکھی ہے۔ تیرا من؟ رانی کندھاری نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں ماتا جی، وہ بہت سندر تھی اور اس قابل کے ہندوستان کی رانی بنے۔ رانی کندھاری کے دل پر یہ بات سن کر چوٹ لگی تھی۔ اگر وہ وریودن سے چمپا کلی کے بارے میں بات کرتی اور وریودن چمپا کلی کو ایک بار دیکھ لیتا تو پھر کبھی وہ اسے چمپا کلی سے شادی کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ خود چمپا کلی کی بھی تو یہی آرزو تھی، لیکن اس نے یہ آرزو اس کے سینے میں گھونٹ کر اس کے پران لے لیے تھے۔ تاہم جو بیتنی تھی وہ بیت چکی تھی۔ اس نے وریودن کے من کو میلا کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا اطمینان ظاہر کر کے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وریودن ماں کے پاس سے خاموشی سے اٹھ گیا تھا، لیکن اپنے دل کے بوجھ کو وہ طویل عرصے تک نہ بھول سکا۔ چمپا کلی کا حسین چہرہ بار بار اس کی نگاہوں میں آ جاتا، وہ اس حسن خوابیدہ کو بھول نہ سکا تھا۔ بہرحال گزرنے والا وقت بہت ظالم ہوتا ہے، اور وقت ہر نقش مٹاتا نہیں تو کچھ ہلکے ضرور کر دیتا ہے۔ اس طرح وریودن بھی اس حسین صورت کو بھول گیا، لیکن رانی کندھاری طویل عرصے تک کانٹوں کے بستر پر لیٹتی رہی۔ وہ خوبصورت جزیرہ جو راجاؤں کی سیرگاہ تھا، اس عمارت کی وجہ سے اور حسین ہو گیا تھا، اور اس عمارت کے اندر چمپا کلی کی سمادھی بنا دی گئی۔ یہ سمادھی خود رانی کندھاری نے اپنے آپ کھڑے ہو کر بنوائی تھی، اور اس سمادھی کے تکمیل ہونے کے بعد وہ اتنا روئی تھی کہ کئی دن بیمار پڑی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان ساری باتوں کو بھول گئی۔ ہاں، جب کبھی دریائے دبیل کے کنارے سے گزر ہوتا تو اسے چمپا کلی کی یاد ضرور آ جاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، وریودن راج کرتا رہا، یہاں تک کہ 12 سال گزر گئے۔ جنگل میں چرندوں اور پرندوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا پانڈو گمنامی کی حالت میں زندگی بسر کرنے کے بعد بالآخر پھر واپس چل پڑے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے
पांडे दुकन के करीब मुल्क दाइन में आए और यहाँ इंतहाई गुमनामी की हालत में जिंदगी बसर करने लगे। वरयोधन ने अपने चचा दादों को खोज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं उनका सुराग ना मिला और फिर पांडे हस्बे शर्त 1 साल तक गुमनामी की हालत में रहे। और जब जलावतनी की तमाम शराइत पूरी हो गई तो पांडवों ने उस वक़्त के एक बहुत बड़े शख्स को एलची बनाकर वरयोधन के दरबार में भेजा और मुल्क की वापसी का मुतालबा किया। वरयोधन पांडवों की जिंदगी के बारे में सुनकर शशदर रह गया था और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पांडव इस तरह वापस आ जाएंगे और फिर अपने मुल्क की वापसी का मुतालबा करेंगे। अव्वल तो वो इन 12 सालों में पांडवों को भूल ही गया था और अपनी दौरे हुकूमत ने उसने बेशुमार फतूहात हासिल की थी और उसका राज दूर दूर तक फैल गया था। अब ये पांडे ना जाने कहाँ से आ गए थे। चुनाचा वरयोधन में भला इस बात को कैसे तस्लीम कर लेता और उसने इस मुतालबे को रद्द कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पांडवों ने जंग करने का ऐलान कर दिया। वरयोधन को अपनी फौजों पर बड़ा नाज था और उसने अपनी फौजों को सामान्य जंग से आरास्ता करना शुरू कर दिया। लेकिन रानी कंधारी इस जंग का सुनकर बेहद परेशान हो गई थी। तवील अरसे की बात थी, लेकिन चंपाकली की पेशगोई उसे आज भी याद थी। राजा कंधार मर चुका था और इस वक्त उसका भाई कंधार पर हुक्मरानी कर रहा था। ये इस तरह से वरयोधन का आलाकार ही था और हमेशा उसके आगे सर झुकाए रहता। रानी कंधारी अब खासी बूढ़ी हो गई, लेकिन बहर सूरत उसे बेटे से छुपाकर एक बार फिर सफ़र किया। वरयोधन महाराज की तलाश में उन्हीं गारों तक गई। गार में पहुंचकर मालूम हुआ कि धनराज महाराज उसी हुजरे में है। हालांकि थोड़ा अरसा पहले धनराज महाराज अपने घर से बाहर आए थे। रानी कंधारी उनके बाहर आने का हाल सुनकर शशदर रह गई थी। तवील अरसे के बाद धनराज महाराज की बात कानों में पड़ी। हालांकि आखिरी बार उसने उन्हें हड्डियों के पिंजर की शक्ल में देखा था, लेकिन साधु संतों की बातें साधु सनत ही जाने। रानी कंधारी को अंदाजा था कि धनराज महाराज बहुत बड़े ऋषि और मनी हैं, इसलिए उनकी जिंदगी और मौत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाचा इस बार भी वो धनराज महाराज से मिलने से माजूर रही और वापस अपने महल में आ गई। एक तरफ वरयोधन अपनी फौजों की तैयारी में मसरूफ था और महाभारत की तैयारियां हो रही थी, और दूसरी तरफ रानी कंधारी साधु संतों से और जादू टोनों से इस जंग को रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे खदशा था कि वरयोधन इस जंग में मारा जाएगा। हालांकि उसके बाकी बेटे भी जंग में शरीक होने के लिए तैयार थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा वरयोधन प्यारा था और वरयोधन की जिंदगी के बारे में सख्त खलफशार का शिकार थी। इन्हीं हालात में उसकी मुलाकात एक ऐसे साधु से हुई जिसने एक खास बात बताई। साधु ने रानी कंधारी को बताया कि अगर रानी कंधारी एक खास जाप करने के बाद अपने बेटे वरयोधन को बरहना देख ले तो वरयोधन का बदन इन तमाम आफात से महफूज हो जाएगा जो उस पर नाज़िल होने वाली होंगी। रानी कंधारी उस पर तैयार हो गई और उसने वरयोधन को हिदायत भेज दी, लेकिन एक बहुत बड़े शख्स ने जो उनके लिए अवतार की हैसियत रखता था वरयोधन को मशवरा दिया कि वो माँ के सामने बरहना ना जाए और कम से कम 70 पोशी के लिए फूलों का एक हार पहन ले। वरयोधन ने उस शख्स के मशवरे पर अमल किया। रानी कंधारी ने जाप मुकम्मल करने के बाद जब वरयोधन को देखा तो उसके हरक से एक दिलदोज चीख निकल गई और वह समझ गई कि फूलों का यह हार जिन जिन हिस्सों को उसकी निगाहों से छुपाए हुए है वही उसकी मौत का बाइस बन सकते हैं। पर अब कुछ नहीं हो सकता था, जो होना था वो तो हो गया। अजीमो शान मार का जंग शुरू होने वाला था। दोनों लश्कर आमने सामने, यहाँ तक कि वो वक़्त आ गया जब उन्हें जंग करना थी। ये अजीमो शान मार का जंग कुल जग के शुरू होने के दौर में बर्पा हुआ। दोनों लश्कर इस बुरी तरह एक दूसरे पर हमला आवर हुए। 18 रोज तक ये जंग जारी रही और इस तरह हुई कि दोनों तरफ के लश्करियों को हरीफों और हलीफों में इम्तियाज करना मुश्किल हो गया। इस जंग में कौरवों की तरफ से शामिल होने वाला लश्कर 11 कशून पर और पांडवों की तरफ से शामिल होने वाला लश्कर 7 कशून पर मुश्तमिल था। कशून की इस्तिलाह के मुताबिक एक कशून 21,672 फेर सवारों, उतने ही सांड सवारों और 65,1400 घोड़े सवारों और 1,09,450 प्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल होता है।
इस खौफनाक जंग में इस भारी तादाद में सिर्फ 12 आदमी जिंदा बचे थे। 4 आदमी कौरवों के लश्कर में से, जिनके नाम ये थे, एक ब्राह्मण कृपाचार्य जो फ्रीकियन का उस्ताद था और मालिक सैफो कलम था। दरून नामी एक आलम का बेटा शोथा मान जो कृपाचार्य की तरह फ्रीकियन का काम उस्ताद था। कर्त बर्मा नामी एक शख्स जो या 2 खानदानों से तलक रखता था और वरयुदन के बाप का रथबान जिसका नाम संजी था। 8 आदमी पांडवों के लश्कर में से बचे थे। 5 पांडव भाई सानक नामी या 2 खानदान का फर्द और वरयुदन का सौतेला भाई यूश और 8वां श्री कृष्ण के जो अपनी शोहरत की वजह से तारीफ से बेनियाज हैं। वरयुदन का सौतेला भाई एक बनिए की बेटी से पैदा हुआ था। श्री कृष्ण उस जमाने में साधवों की हैसियत रखता था। लोग उसे अवतार मानते। उस शख्स के बारे में बेशुमार रवायतें मशहूर थी और उसके बारे में मुख्तलिफ अकीदे मरवज हैं। बाद उन्हें दुनिया भर के तमाम फरेबियों का सरदार और हीला गुरु से आला मानते हैं और बाद उनकी पैगंबरी के कायल हैं और बाद उन्हें खुदा का अवतार समझकर उनकी परस्तश करते हैं। महाभारत में मक्कारी और गद्दारी का अंजाम सामने आ गया था। वरयुदन का खात्मा हो गया और उसके लश्करी और खानदान के लोग भी मौत के घाट उतारे गए। कौरवों के खानदान की तबाही और वरयुदन के कत्ल के बाद पांडवों के खानदान का युधिष्ठिर ममालिक हिंदुस्तान का फरमारवा हुआ और सारी दुनिया में उसकी सल्तनत का शोहरा हुआ। महाभारत के बाद पूरे 30 साल तक युधिष्ठिर ने हुकूमत की, लेकिन वो दरवेश मिनज था और उसने खुद ही दुनिया की हकीकत और माहियत पर गौर करके तख्त से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उसने 4 भाइयों के साथ लेकर गोशा नशीनी में बकिया जिंदगी गुजारी और इसी आलम में दुनिया फानी को खैर बात कहा। उसके बाद युधिष्ठिर के चचादाद भाइयों ने हुकूमत की और फिर पांडवों के खानदान में अर्जुन की औलाद में से तीसरी नस्ल में एक लड़का पैदा हुआ। ये लड़का हर तरह की ज़ाहरी और बातनी खूबियों से माला माल था, नहायत आदल और इंसाफ पसंद। और उसके दौर में किताब महाभारत लिखी गई जो एक शख्स बशर नामी ने लिखी थी। हिंदू अकीदा जो कुछ भी कहता हो, हमारा अकीदा उससे मुख्तलिफ है। हमारा अकीदा तो यह है कि दुनिया में हज़रत आदम से पहले कोई और खाकी पैदा नहीं हुआ और तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह की औलाद यानी साम या नस और हाम इस दुनिया की आज़ादी और इफ्तिखार का बायस बने और ज़ाहिर है कि ये हिंदुस्तान भी उन्हीं की औलादों से आबाद हुआ। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह के बाद नूह की औलाद यानी अपने 3 बेटे यानी यान, साम और हाम को अर्ज़ खेती बाड़ी और कारोबार का हुक्म देकर दुनिया के चारों तरफ रवाना किया। साम हज़रत नूह के सबसे बड़े बेटे और जानशीन थे और उनके फर्जंदों की तादाद 99 थी। अरब के तमाम कबीले हज़रत साम की औलाद के नाम पर हैं और उनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। और फक्शा जो हज़रत साम के बेटे हैं, उनका बेटा हजम का मुअर से आला है और फक्शा के इस बेटे का नाम कैमोरस है। कैमोरस के 6 बेटे हैं, सियांक, गराक, फारस, शाम, तोर और मनान। कैमोरस के बेटे जिस जगह गए वो जगह उनसे नाम से मसूम हुई और वही उन्हीं की औलाद आबाद हुई। श्यामा के बड़े बेटा का नाम होशंग था और हजम के तमाम बादशाह यूजर तक उसकी औलाद में से हैं। हज़रत नूह के दूसरे बेटे यांस बाप की इमा पर मशरक और शमाल में गए और वहीं आबाद हो गए और उनके यहाँ भी बहुत से बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर बेटा तुर्क नाम का है। तुर्कस्तान की तमाम कौमें यानी मुग़ल, अज़बक, तुर्कमानी सब उन्हीं की औलाद में से हैं। यानस के दूसरे मशहूर बेटे का नाम चीन है, मुल्क चीन का नाम उसी पर है। तीसरे बेटे का नाम अरवीसी है और उसकी औलाद शमाली मक्तों की सरहद पर बहरे जुल्मात तक आबाद हुई। अहले ताजिक भी उसी की नस्ल से हैं। हज़रत नूह का तीसरा बेटा हाम और अपने वालिद ग्रामी के हुक्म से दुनिया के जनूबी हिस्से की तरफ गया और उसको आबाद और खुशहाल किया। हाम के 6 बेटे थे जिनके नाम ये हैं, हिंद, सिंध, हबश, अनर्च, हरमज और बोया। इन सब बेटों के नाम पर एक एक शहर आबाद हुआ और हाम के सबसे बड़े बेटे हिंद ने मुल्क हिंदुस्तान अपनाया और उसे खूब आबाद और सरसब्दो शादाब किया। हाम के दूसरे बेटे सिंध ने मुल्क के सिंध में क़याम किया और ठट्ठा और मुल्तान को अपने बेटों के नाम से आबाद किया।
हिंद के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए जिनके नाम ये हैं पूरब, दुक्कन, भंग और नहरवाल। जो मुल्क और शहराने नामों से मशहूर हैं वो उन्हीं के आबाद किए हुए हैं। हिंद के बेटे दुक्कन के घर 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम मरहट, कन्नड़ और रांग हैं और आजकल दुक्कन में जितनी कौमें आबाद हैं वो सब उन्हीं की नस्ल में से हैं। हिंद के चौथे बेटे नहरवाल के यहाँ भी 3 बेटे हुए जिनके नाम भरवज, कन्हाज और मालदाज हैं और इन तीनों के नाम पर भी मुख्तलिफ शहर आबाद हुए। बहुत से शहरों में उनकी औलादें आज तक आबाद हैं। हिंद के तीसरे बेटे की औलाद ने मुल्क बंगाल आबाद किया और उसकी औलादें भी आज तक बंगाल में आबाद हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक 7 यज्ञ, तृतीया यज्ञ, द्वापर यज्ञ और कुल यज्ञ आते जाते रहते हैं और किसी भी यज्ञ में जिस शख्स का इख्तिताम हो उसी युग में इस शख्स की दोबारा नमूद होती है और उन यज्ञों के दरमियान इतने तवील बरसों का फासला होता है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। बहरहाल ये हिंदू अकीदा है और चंपा कली की कहानी भी उसी अकीदे से ताल्लुक़ रखती है। महाभारत हो चुकी, हिंदुस्तान में कौरवों का पांडवों का दौर ख़त्म हो गया। महाराज की हुकूमत आई जिन्होंने हुकूमत के सरदारों और अपने भाई बंदों की मदद की और मशवरे से हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और मुल्क को आबाद करने और हुकूमत को बेहतरीन तरीके पर चलाने के लिए सख्त मेहनत की। महाराज ने ज़राअत की तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और बेशुमार नए शहर आबाद किए। इन नए शहरों को बहार आबाद का जिक्र करना भी ज़रूरी है और इसने दूर दूर से अहले इल्म को बुलवा कर इस शहर को आबाद किया। शहर में बेशुमार मदरसे और इबादत गाहें बनवाईं और नवाही असल की आमदनी को इन इबादत गाहों के मसारफ के लिए वक्फ कर दिया। महाराज ने 700 बरसों तक हुकूमत की और उसके अहद हुकूमत में हिंदुस्तान की हालत बिल्कुल बदल गई। उसने शाहान ईरान के साथ हमेशा खुलूस व मोहब्बत का बर्ताव किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका नतीजा नाराज़ होकर फरीदवन उसका भतीजा चला गया और उसे अपने चाचा के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की। फरीदवान ने एक बहुत बड़ी फौज उसकी मदद के लिए रवाना की और जब उसकी फौज का सरबराह हिंदुस्तान आया तो उसने बहुत से आबाद शहरों को वीरान कर दिया। महाराज ने जब ये आलम देखा तो उसने अपने मुल्क का एक हिस्सा देकर अपने भतीजे को राज़ी किया और चंद उम्दा और कीमती अशिया फरीदवान के लिए बेतौर तोहफा भेजी। महाराज के आखिरी ज़माने में संगदीप और कर्नाटक के ज़िम्मेदारों ने आपस में मिलकर पूरी कुव्वत से उसका मुकाबला किया। तरफीन में ज़बरदस्त मार का आराई हुई। महाराज का बेटा लड़ाई में मारा गया। महाराज की बाकी मादा फौज जख्मी और परेशान होकर भाग निकली और अपना मालो असबाब और हाथियों को मैदान में ही छोड़ गई। महाराज ने जब ये खबर सुनी तो उसे सख्त तैश आया और वो दम बरीदा सांप की तरह पीछो ताब खाने लगा। उस पीछो ताब और गम गुस्से का असर सबब ये था कि यह सरकशी दुक्कन के मामूली जिम्मेदारों की थी। महाराज ने उस शिकस्त का इंतकाम लेने का पक्का इरादा किया, लेकिन उस ज़माने में बादशाह ईरान के हुक्म से ईरानी सरदार साम बिन रहमान हिंदुस्तान फतह करने के लिए पंजाब की सरहद तक पहुंच चुका था और माल चंद सिपा सलार बकिया फौज लेकर उसके मुकाबले पर गया हुआ था। चुनाचा महाराज को उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ा जब तक कि माल चंद सरदार से सुलह करके वापस ना आ गया। माल चंद एक सिपा सलार की हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। मुल्क मालवा अभी तक उसके नाम से मशहूर है और जब वो वापस महाराज के पास पहुंचा तो उसे दुक्कन जाने का हुक्म मिला और उसने बड़े इस्तकबाल और शान शौकत के साथ फौरन मुल्क दुक्कन का रुख किया। जब दुश्मनों ने उसकी आमद की खबर सुनी तो हरासा होकर इधर उधर भाग निकले। माल चंद ने फसाद फैलाने वाले गिरोह को बुरी तरह तय किया कि उनका नामो निशान तक बाकी ना रहा। उसने जा बजा थाने और चौकियां कायम की और फतेह कामरान होकर वापस आया। रास्ते में उसने ग्वालियर और बयाने के किले तामीर करवाए और राग का इल्म जो मौसीकी के नाम से मशहूर है दुक्कन और तेलंगा से लाकर हिंदुस्तान में मरवज किया। महाराज ने 700 साल उम्र पाई और उनके 14 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े टीशू राज अपने बाप का जानशीन था और यूं अदवार बदलते रहे, हुकूमतें आती रही, ख़त्म होती रहीं और हिंदुस्तान में बुत परस्ती का रिवाज शुरू हो गया।
महाराज ही के ज़माने में ईरान से एक शख्स हिंदुस्तान आया और उसने यहाँ के लोगों को आफताब परस्ती की तालीम दी और उसकी तालीम को बहुत फ़रोग हासिल हुआ। यहाँ तक कि सितारा परस्त लोग भी आग की परस्तश करने लगे। लेकिन उसके बाद जब बुत परस्ती का रिवाज मरवज हुआ तो यही तरीका सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ। बुत परस्ती को इस दर्जा मकबूलियत इस सबब से हुई कि एक ब्राह्मण ने राजा को इस बात पर यकीन दिलाया कि जो शख्स अपने बुजुर्गों को सोने चांदी या पत्थर की शबीह बनाकर उसकी परस्तश करता है वो सीधे रास्ते पर होता है। और उस अकीदे को लोगों ने इस हद तक अपनाया कि हर छोटा बड़ा अपने बुजुर्गों के बुत बनाकर उनकी परस्तश करने लगा और उन्हें पूजने लगा। उस जमाने में राजा सूरज ने भी दरिया गंगा के किनारे शहर कनूज आबाद करके वहाँ बुत परस्ती शुरू की और उसकी रैयत ने अपने फरमारवा की तकलीद की और कोई अपने अपने तौर पर बुत परस्ती पर आमादा हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में बुत परस्तों के 90 गिरोह पैदा हो गए। राजा सूरज ने चौका कनूज को अपना दारुल सल्तनत बना लिया था, इसलिए उस शहर की आबादी में बेहद इजाफा हुआ। यहाँ तक कि शहर का फैलाव 25 कोस तक बढ़ गया। राजा सूरज की मुद्दत हुकूमत 250 बरस है और उस मुद्दत के बाद उसने इंतकाल किया। राजा सूरज ईरानी शाह के बाद का हम असर था और हर साल उसे खराज अदा करता था। राजा सूरज के यहाँ 35 बेटे पैदा हुए जिनमें सबसे बड़ा लहराज था और जो राजा सूरज के मरने के बाद उसका जानशीन हुआ। वो दौर जो लहराज को मिला बुत परस्ती का दौर था। लहराज ने इक़्तिदार संभालते ही अपने नाम की मुनासबत से एक शहर आबाद किया जिसका नाम लहराज रखा गया। हिंदुस्तान के इस बादशाह को मौसीकी से बहुत दिलचस्पी थी। उसने अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा अपने इस शुगफ में गुजारा। राजा सूरज ने अपने ज़िंदगी में शहर बनारस की बुनियाद रखी लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इस शहर को बसा नहीं सका। लहराज ने इस शहर को बसाने की पूरी कोशिश की। बहरहाल लहराज ने अपने बेशुमार निशान छोड़कर अपनी हुकूमत केदार ब्राह्मण के हाथों हार कर मर गया। लहराज ने 26 साल हुकूमत की। केदार ने 19 साल हुकूमत की और उसके बाद शंकल ने केदार को शिकस्त देकर खुद को हिंदुस्तान का फरमारवा बना लिया। गौर नामी शहर शंकल का आबाद करता है। शंकल ने हिंदुस्तान पर 64 बरस हुकूमत की। शंकल के बाद उसका बेटा बरहट तख्त नशीन हुआ। बरहट ने 81 साल हुकूमत की और मर गया और उसकी राजा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसके मरने के बाद मुल्क में तवाइफल मलूक का दौर दौरा हो गया। तब खवाहा कौम के एक शख्स महाराज ने कनूज पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान का राजा बन गया। महाराजा कछवाहा ने 40 साल तक हुकूमत करने के बाद वफात पाई और हुकूमत की बागडोर महाराज की वसीयत के मुताबिक उसके भांजे केदराज के हाथ आई। केदराज की मौत के बाद ये हुकूमत जे चंद ने हासिल कर ली जो केदार राज का सिपह सलार था और उसने केराज के मरते ही कुव्वत व इक़्तिदार हासिल करके सल्तनत पर कब्जा कर लिया और राजा बन बैठा। ये वही युग था जिसमें वरयोधन ने अपने गलत फैसले का शिकार हुआ था और रानी कंधारी ने चंपा कली पर सितम ढाया था। जे चंद के दौरे हुकूमत में बहुत बड़ा कहत पड़ा और चौंका वही शाही खानदान से ताल्लुक न रखता था, इसलिए उसने खुदा के बंदों की कोई परवाह न की और खुद दादे ऐश देता रहा। खुदा की मखलूक की जानें ज़ाया हुई और अक्सर गांव और कस्बे तबाह हो गए और उसके नतीजे में एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार रहा। उमरा और सुल्तनत के बड़े बड़े लोगों ने उसे खातर में लाना छोड़ दिया और मुल्क में जगह जगह बगावतें उभरने लगी। यूं जे चंद हजार मुश्किलात में पड़ गया और अक्सर छोटी छोटी बगावतें ख़त्म करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग उसके सख्त खिलाफ थे। अलबत्ता उसकी रानी शरदा एक छोटे से राजा युद्धराज की बेटी थी, बड़ी ज़ैरक और समझदार। शरदा जे चंद की 5वीं बीवी थी और इससे पहले जे चंद 4 शादियां कर चुका था। हिंदू धर्म के खिलाफ उसने बहुत सी औरतों को यूं भी रख छोड़ा था। रानी शरदा जिंदगी में सिर्फ 3 बार जे चंद की खिलवत हासिल कर सकी। जे चंद की इतनी रानियां थी
लेकिन उसके बावजूद उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हाँ, जब रानी शारदा उसकी बीवी बनी तो उसके कुछ अरसे के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। यूं रानी शारदा जयचंद की मंजूर नजर बन गई। जयचंद ने बेटे की पैदाइश पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई, लेकिन उसकी खुशियों का साथ देने वाले बहुत कम लोग थे। सिर्फ राजधानी में कुछ घराने ऐसे थे जो जयचंद की खुशियों में बराबर के शरीक थे, वरना ज्यादातर लोग सिर्फ जयचंद की फौजों की वजह से उस जश्न में शरीक थे। जयचंद का बेटा जब 11 साल का हुआ तो जयचंद को एक बहुत बड़े खतरे का सामना दरपेश हुआ। ये खतरा राजा केदू का था, जिसने जयचंद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। जयचंद चौंका, अपनी पूरी जिंदगी में सुकून नहीं पा सका था, इसलिए वो सेहत की तरफ से भी फिक्रमंद था और उसकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके वज़रा और उमरा से मशवरा दे रहे थे कि वो बहमन वज़रा और अब उसके अलावा राजा केदो को भी खराज अदा करे, लेकिन एक हिंदू राजा को खराज अदा करना जयचंद के लिए बहुत हद तक अमीर था। चुनाचा उसने अपने वज़रा और उमरा की बात ना मानी और जंग की तैयारियां करने में मसरूफ़ हो गया। रानी शारदा को यह उम्मीद थी कि जयचंद ने अपनी ज़िंदगी में उसके साथ जो भी सलूक किया हो ये अलग बात है, लेकिन कम से कम उसकी मौत के बाद हुकूमत उसके बेटे तिलक देव को ज़रूर मिल जाएगी, और जब तिलक देव की हुकूमत होगी तो रानी शारदा यकीनन एक मतलकल अनान रानी बन जाएगी। चुनाचा तिलक देव की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उसने अपने सर ले ली और तिलक देव को फ़नून सिपाहगरी में ता करने के लिए उसने बहुत से लोग रखे। रानी शारदा को पंडित गरदारी लाल से बहुत अकीदत थी, जो दरिया पार के एक मंदिर में जीवन बिताते और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। सर के सारे बाल और भुवें सफ़ेद हो गई, लेकिन लोग उनके ज्ञान और इल्म के बड़े कायल थे और महीने के पहले मंगल को दरिया पार करके लोग पंडित गरदारी लाल के ज़रूर मंदिर जाते और वहाँ जाकर पूजा करते। जयचंद खुद भी गुरु गरदारी लाल का बड़ा अकीदतमंद था और जब भी उसे फुर्सत मिलती वो उनसे मशवरा लेने के लिए चला जाता। एक बार रानी शारदा भी गरदारी लाल के मंदिर में राजा जयचंद के साथ गई और उसे गुरु पंडित गरदारी लाल से बेहद अकीदत हो गई। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा था कि जल्द ही तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा और इसका नाम तू तिलक देव रखना, और रानी शारदा ने गर्दन हिला दी। चुनाचा जब तिलक देव पैदा हुआ और रानी चन्ने से बाहर आई तो सबसे पहले उसने गुरुदेव के मंदिर का रुख किया और कश्ती में बैठकर उनके पास पहुंची। पंडित गरदारी लाल ने तिलक देव को देखा और देर तक किसी ख्याल में गुम रहे और उन्होंने उसे आशीर्वाद तक न दी थी। जब रानी शारदा ने उन्हें चौंकाया तो वो हड़बड़ा कर चौंके महाराज की सोच में डूब गए। रानी शारदा ने पूछा, कुछ नहीं देवी, बस बच्चे के बारे में सोच रहा था। पंडित गरदारी लाल ने कहा, क्या कोई खास बात है? महाराज जैसे फिर चौंक पड़े। नहीं, कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही अनजाने में उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल उभर आता है। क्या ख्याल आता है? मैं इस ख्याल को कोई लफ्ज़ नहीं दे सकता देवी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस गिरा को तोड़ सकूं। रानी शारदा पंडित गरदारी लाल की बड़ी अकीदतमंद थी, इसलिए वो खुद भी ये सुनकर परेशान हो गई और जब महीने के पहले मंगल को वो दोबारा उनके पास गई तो उसने फिर वही सवाल कर दिया, मैं जानना चाहती हूँ वीर जी कि आखिर वो कौन सी गिरा थी जो तिलक देव को देखकर आपके मन में पैदा हुई। तो विश्वास कर शारदा कि हम खुद भी इसके सिलसिले में परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि इसे देखकर हमारे मन में कुछ मीठे मीठे से ख्यालात क्यों पैदा हो जाते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, अब के मंगल जब तू आएगी तो इसके बारे में तुझे बहुत कुछ बताएंगे। हम इस सिलसिले में जाप कर रहे हैं जो हमें हमारी खोई हुई याददाश्त वापस दिला देगा, पंडित गरदारी लाल ने कहा। रानी शारदा यूं भी जयचंद की अदम तवज्जोही का शिकार थी। बेटे की पैदाइश के बाद जयचंद के रवैये में कुछ तब्दीलियां जरूर हुई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि रानी शारदा किसी खुशफहमी का शिकार हो जाती या किसी गलत फहमी का शिकार हो जाती। ताहम उसे ये उम्मीद जरूर बंध गई कि तिलक देव जयचंद का सबसे बड़ा बेटा है। अगर दूसरी रानियों से कोई बेटा पैदा हुआ भी तो कम से कम हुकूमत का दावेदार नहीं होगा। चुनाचा उसके दिल में बहुत से ख्यालात थे और जिस बात ने उसे परेशान कर रखा था वो पंडित गरदारी लाल की बात थी। चुनाचा 1 माह तक उसने कांटों के बिस्तर पर लेटकर वक्त गुजारा।
और बिल आकर पिंडत गरदारी लाल के पास पहुंच गई। पिंडत गरदारी लाल की इबादत गाह पर बेपनाह हजूम था। हजारों की तादाद में लोग यात्रा करने आए और पूजा पाठ का मैदान भरा हुआ था। रानी शारदा भी आम लोगों की मानद पूजा शुरू कर दी। पिंडत गरदारी लाल की हिदायत थी कि मंदिर में आने के बाद खुद को ना कोई राजा समझेगा ना रानी, और यहाँ आने वाले सब यकसा हैसियत रखते हैं, इसलिए खुद कोई भी भगवान के द्वार आकर बड़ाई ना दे। चुनाचा यहाँ का असूल था, और अगर जे चंद भी यहाँ आता तो आम लोगों की तरह आता और पूजा पाठ करके चला जाता। हाँ, जब तमाम लोग चले जाते तो पिंडत गरदारी लाल अगर कोई खास बात होती जो जे चंद या रानी शारदा को कोई खास वक्त दे दिया करते थे। चुनाचा पूजा पाठ में खासी रात बीत गई। काफी देर हो चुकी। यात्री आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे थे और रानी शारदा एक कोने में बैठी उन सब के चले जाने का इंतजार कर रही थी। प्रसाद तकसीम हो चुकी थी। थोड़ी सी प्रसाद उन्हें भी मिली, और जिसमें एक नन्हा सा हिस्सा तिलक देव का भी था, जो अभी रानी की गोद में ही था।